ہمارے ہزاروں سلمان اظہری ہیں. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرانا چاہتے ہو، اگر ای ڈی اور سی بی آئی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کانگریس نے ابھی کرناٹک کے چناؤ میں کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے. تم تمام کے تمام بے ایمان ہو، غدار ہو، جھوٹے ہو کہ 24 تاریخ کے بعد ہمارے اتحاد کا اعلان ہونے جا رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ایک نام ہے، مشہور نام ہے علماء کی فہرست میں، انہوں نے کلمہ کی بنیاد پر ایک ہونے کی دعوت دی ہے اور برسر ممبر علماء اور عوام کی موجودگی میں یہ بات کہی. حالانکہ یہ بات آپ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا تو آپ پر جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا گیا، دیوبند جانے کو لے کے اعتراض کیے گئے. اب خود علماء یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے قبل از وقت کیا تھا. لوگوں کی وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. جی، دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے نفع اور نقصان میں اس کو تولنے کی کوشش کی. جی، اگر اس وقت میری بات سمجھ لی ہوتی تو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، جی، یہ حالات نہ بنے ہوتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ اللہ نے جو سمجھ، جو نظر مجھے عطا کی ہے، وہ ہمارے علماء اکرام کو، ہماری عوام کو وہ سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے. تو میں نے وقت سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیا تھا. جی، اور اس لائن پہ میں نے کام شروع کر دیا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اختلاف کیا، اور اس کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں. اگر اس وقت میری بات سمجھ لی گئی ہوتی، جیسے میں نے مسلک میں اتحاد کی بات کبھی نہیں کی، عقائد میں اتحاد کی بات کبھی نہیں کی. مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگ، جنہیں ہندووادی سنگٹھن مسلمان سمجھتے ہیں، جنہیں ہندووادی پارٹیاں مسلمان سمجھتی ہیں، جنہیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمان سمجھتی ہیں، ایسے مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہو کر اس بے ایمانی کی لڑائی کو لڑنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لڑائی لڑنے میں کہیں کمزور ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے انہوں نے ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کی اور اصفیہ کی طرف انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی اور کھلی چھوٹ دی. اور ہمارے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں سارے دیوبندی جو ہے وہ آتنکوادی ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کہلائے جانے والا کوئی بھی شخص آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے لوگوں نے یہ بات کہی، وہ اپنے اس طریقے کے ذریعے وہ ان پر دباؤ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ کیشو کنج سے ڈائریکشن لیتے ہیں، حکومت سے ڈائریکشن لیتے ہیں، کام نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب جب ان کو کنٹرول میں کر لیا، اب آپ کی خانقاہوں کی طرف توجہ ہوئی، آپ کے علماء کی طرف ان کی توجہ ہوئی. اب آپ کے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جھوٹے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں. تو 1 بائی 1 نمبر سب کا آنا ہے. ان چیزوں کو ہم نے محسوس کر کے مہم اس وقت چلائی تھی، اب سے 20-22 سال پہلے، لیکن اس کو نہیں سمجھا گیا. میں نے جیسے موبائل کے خلاف مہم چلائی تھی، 12-15 سال اس بات کو بھی ہو گئے. میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی کم سن بچیوں کو موبائل سے دور رکھو، یہ ایسا شیطان ہے جو کان کے ذریعے دل میں جگہ بنانے کا کام کرتا ہے. لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسی موبائل کی وجہ سے ہماری کتنی بچیاں مرتد ہو گئیں. تو جو بنیادی مسائل ہیں مسلمانوں کے، اس طرف توجہ نہ دے کر ہمارے جلسوں میں صرف رد اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ چلتا رہا. ان جلسوں کے ذریعے جو کام کیا جا سکتا تھا وہ کام نہیں کیا گیا. ہماری خانقاہوں میں آج دیکھتا ہوں کہ روحانیت کے مراکز ہیں، لیکن روحانیت نام کی مجھے کوئی چیز وہاں ملتی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اپنی تمام چیزوں پر
अपनी हर महरूमी, हर नाकामी का इल्जाम बीजेपी पर लगा देना, आरएसएस पर लगा देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपने आमाल पे नजर डालनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। दावत का सिलसिला बिल्कुल बंद कैसे हो गया? अगर दावत का सिलसिला जारी रहता तो मैं समझता हूं कि ये जो दूरियां और ये खला जो पैदा हुआ है ये ना होता। ये जो खाई इतनी बड़ी बना दी गई है हिंदुस्तानियों के दरमियान, और हिंदुस्तानी का दुश्मन बन गया है। अब उलमा की समझ में अगरचे देर से आया, लेकिन अभी भी वक्त है, और मैं ये समझता हूं कि अगर 24 को सूझबूझ के साथ अगर हमने 24 में कोई फैसला कर लिया तो नतीजा कुछ बेहतरी का निकल सकता है। वैसे हजरत, आने वाले 2024 इलेक्शन में उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, हर चीज का एक इलाज है, इत्तेहाद। इत्तेहाद के बिना कुछ नहीं हो सकेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो मुसलमान है। अगर एक मंच पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, वो मसाइल की वजह से एक प्लेटफॉर्म पर आए, कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आए, या जिस भी अपनी तकलीफों, अपनी परेशानियों की वजह से एक प्लेटफॉर्म पर आए, जैसे भी आए, अगर एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमान आ जाता है और 2024 का फैसला मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर करता है, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये जमात होगी। हमारी कोशिश है कि मुसलमानों को मुत्तहिद करके, और इसके साथ हमारी दलितों में भी काम चल रहा है, SC ST OBC और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं और ट्राइबल्स हैं, इन लोगों से बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह आने वाली 24 तारीख को हमारी मीटिंग है इस सिलसिले में, और उसमें ये फैसला किया जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उम्मीद हमें बनी थी कांग्रेस से, जब उन्होंने एक अलायंस बनाया था तमाम पार्टियों को लेकर, तो हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मजबूती से हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की गलत पॉलिसी की वजह से वो तमाम अलायंस इंडिया को बिखेरने का काम किया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए वो तमाम। तो अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस, अगर मुस्लिम माइनस करके देखा जाए तो कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। समाजवादी को मुस्लिम माइनस करके देखिए, उनका अपना क्या है। उनका यादव मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, जाटव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। तो ये तमाम लोग मोहताज हैं मुसलमानों के, लेकिन मुसलमानों के माथे पर मोहताजी का टैग लगा दिया गया है कि मुसलमान मोहताज है, जाएगा कहां? अगर बीजेपी को उसे हराना है तो हमारे साथ आएगा। ये मोहताजी का टैग हमें अपने माथे से हटाना है, और इसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान समझे जाने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और इन फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करें। और फिरका परस्ती का मुकाबला करने से पहले हमें उन सेकुलरिस्टों को दावत देनी है। वो तमाम लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल करते हैं, उन तमाम को दावत देनी है कि आज तक हमने आपका झंडा उठाया है, आज हमने अपना मुत्तहिदा महाज बना लिया है, हमारे साथ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे साथ दलित हैं, हमारे साथ ट्राइबल्स हैं, और अब तक हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारे साथ आइए, अपनी बताइए कि आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या औकात है। हमारे पास कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह इस चुनाव में आएगा, और उसके साथ ये दलित वगैरह अगर शामिल हो जाते हैं और दीगर माइनॉरिटीज शामिल हो जाती हैं तो हम 40 से 45 करोड़ तक पहुंचते हैं। और इतनी बड़ी तादाद किसी पार्टी के पास, किसी दूसरी जमात के पास है ही नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मुसलमानों से दामन बचाने वालों, ये समझ लो कि तुम देश का नुकसान कर रहे हो, मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हो, मुसलमानों को हकीर नहीं समझ रहे हो, तुम अपने मुल्क का नुकसान करने का काम कर रहे हो। नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी को सत्ता से अगर बेदखल करना है तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देना पड़ेगी, क्योंकि तुम तमाम को हमने आजमाया है,
तुम तमाम के तमाम बेईमान हो, गद्दार हो, झूठे हो। कांग्रेस ने अभी कर्नाटक के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वो अपने इस वादे से मुकर गए। और हमने उनके ऐसे कितने वादे देखे हैं, हमने तमाम लोगों को आजमाया है। हम असल में ईमानदार लोग हैं, हमारे साथ खड़े होंगे तो ईमानदारी का काम होगा, इंसाफ का काम होगा और सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। तो तमाम पार्टियों को मैं दावत देता हूं कि 24 तारीख के बाद हमारे इत्तेहाद का ऐलान होने जा रहा है और तमाम पार्टियों को खुली दावत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो, अगर ईडी और सीबीआई से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे परचम तले आना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे हज़रत अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी को 2 दिन पहले यानी लगभग 17 या 18 को कोर्ट में पेशी भी नहीं हो पाई और उन्हें साबरमती जेल भेज दिया गया। तो जिस पर सियासी हलकों में ये बात घूम रही है कि जो भी मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश करेगा उसको इसी तरह से जेल में ठूंस दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हजारों सलमान अज़हरी हैं जिनके दिल में जज्बा है अपने कौम और अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने का, और कुर्बानी देने का वक्त है। अगर कुर्बानी नहीं दी जाए, मैं तो अल्लाह एक बात कहता हूं कि हम अपने माल की हिफाजत के लिए, और हुक्म है हमें कि अपने माल में से ज़कात निकालो। जिस तरह हम अपने माल की हिफाजत के लिए अपने माल की ज़कात निकालते हैं, उसी तरह हमें अपने ईमान और अपनी जान की हिफाजत के लिए हमें ज़कात निकालनी चाहिए। और ये ज़कात किस शक्ल में निकलेगी? जान का सदका माल है, लेकिन ईमान का सदका जान है। अगर हम ये 2%, 2.5% ज़कात निकालने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, तो इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। शुक्रिया।